So should we be waiting another 5 minutes or should we start the class? I would request everyone to turn off their mic, mute themselves. Neha, Bachar, mute yourself. Neha, I would request you. Yes, thank you. And please, this is a genuine request. Please be careful that you are on mute. And if you only unmute yourself when you want to ask something because वैसे बहुत disturbance हो जाता है. Okay, so you guys are second semester students, right? Yes, ma'am. Anjay. So how was first semester? How was first semester, guys? It was quite fine, ma'am. Okay. And exams कैसे गए आप सबके? मैम वो भी अच्छे थे. Okay, great. So you guys know what subject we are going to study today? Yes, ma'am. Which one? After social psychology. Yes. So this is your first class, right? Has this subject Yes, been ma'am. taught before, or is this your first class to this subject, an introduction class, introductory class, right? Ma'am, first class. Okay, great. So I'll start. Okay, so basically, if I give you some feedback or some introductory syllabus, if we go through the syllabus, there are 3 units in the syllabus. The first one is the introduction, where we'll be knowing about what social psychology is, what is its scopes, what are its methods, how social psychology came into being as a different subject altogether, right? And so we are going to study all that. Yeah, so in that we'll be talking about social psychology कैसे start हुआ, origin कैसे हुआ, then the difference between theory and research and how they interplay between each other, and what are the links of social psychology to different disciplines, and then what is the research that is done in social psychology. So that is basically the unit 1, which talks about which talks about the introduction. Now, the second unit we'll be talking about
not in this class, of course, most probably in the next class, it would be interpersonal processes. Interpersonal processes, inter का मतलब हम समझ रहे हैं कि anything which is between two or more than two individuals. So that we will be talking about in unit 2, जिसमें हम pro-social behavior पढ़ेंगे. Pro-social behavior is when we help each other. Aggression we'll be studying. We'll be studying a lot about aggression, how to control aggression, उसके determinants क्या होते हैं, and then of course social influence we'll be talking about. And the third unit talks about group dynamics. What are the nature of the groups? What are the different types of group? How are groups formed? How does decision making takes place in a group? So this all we'll be studying. All right. Now, again, I would request you all, if you have any queries or any questions, you are more than welcome to ask. All right. And also, I wanted to ask, is it okay me teaching in English, or would you like a Hindi uh, version or a Hindi English mixed version? Ma'am, bilingual. Okay. Ma'am, bilingual. Everyone is okay with me mixing Hindi and English both? Yes, ma'am. Is there anyone who Yes. is not comfortable with Hindi or English or even Hindi? Works for everyone, right? Okay, great. So yes, we'll be starting uh, from the unit 1. Of course, I'll try my best कि आज we complete the first unit, but we'll keep it slow. We'll try our best कि आप लोगों को सब कुछ समझ आए और हम भागे ना, because we have sufficient amount of classes to cover the whole syllabus, and it is going to be covered. Even revision again, I can help you guys with it. All right. So now social psychology. Okay, Ma'am, can few people, Hanji? ma'am, will you be sharing the screen? No, I won't be. Actually, I don't have a PPT with me. I am simply teaching you with what I have read in my notes. All right, that works for you guys. Yeah, Do you sure. guys prefer PPT or what do you guys prefer? Ma'am, PPT. Okay, I see some hands raised. Yes, Sanjukta, you want to ask something? Divya, oh my God. Okay, great. Wow, I see a lot of hands raised. Guys, you want to say something? Ma'am, Ma'am, PPT after helps this, in understanding more. Okay. All right. So today, so we'll not be able to teach. I won't be able to teach with PPT, but I'll try my best because somehow I believe PPT बहुत restrict कर जाता है. So this class is not for honor students. This is only PA program. Anyone else would like to share their thoughts? Can we start? yes, ma'am. All right. Okay, great. Okay, so uh, does anyone have any idea what is social psychology? आपने psychology तो पढ़ ली है इतने टाइम से, आप काफी आपको टाइम हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है what is psychology. So can anyone have this guess कि social psychology क्या होगा? Yes, ma'am. Okay, Ashni, you want to say something?
Yes, I can no longer share my video. I don't know why. Okay. Yes, Ashni, if you want to say something. Yes, ma'am. That I think that social psychology is the study, is the scientific study of the people's behavior, they which are influenced by the presence of others. That is the correct definition, right? Okay. If I say, give me an example. Do you have an example? Anyone has any example or just Ashmi? Yes, There are ma'am. a I lot of will try. people in the waiting room. Okay. See, I don't have this option of letting people in. The waiting room thing you're talking about. Anyone else wants to say what do they understand about social psychology? कुछ भी समझ आता है आपको कैसे भी कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आई एम नॉट आस्किंग यू डेफिनेशन कुछ भी रट्टा कुछ ऐसा नहीं जस्ट आपको जो समझ आता है विद द टर्म सोशल साइकोलॉजी। नो वन। Ma'am, can you repeat the question, please? सराउंडिंग में जो पीपल होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं मैम। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं मैम। Okay, that is a good point. Okay. Anurag, I want to know what do you understand by social psychology? अभी तो हम पूरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो मेरे को कुछ ऐसा किताबी डेफिनेशन या कुछ नहीं चाहिए। I don't want any definition or any like term as such. I just want to know what do you understand by the term social psychology when you hear it. मैम बाकी लोगों के प्रेजेंस में एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा? Absolutely correct. ओके सो यू गाइज नो एक्चुअली सोशल साइकोलॉजी क्या होता है और मुझे बहुत ज्यादा उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है बट यस सो सी व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट डेफिनेशंस सोशल साइकोलॉजी के हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस है बहुत सारी बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो एक सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट एरिया एंड देन वन पर्सन कम्स दैट पर्सन गिव्स a definition then the other person comes उनको अपने हिसाब से वो डेफिनेशन देते हैं एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल सो सेम goes with social psychology. Social psychology has a lot of definitions, but one which is very commonly quoted and which I think is highly used and it sums up the actual definition of social psychology is it is the scientific investigation of how the thoughts and feelings and behaviors of individuals are influenced by the actual imagined और implied presence of others. तो पहले तो हम इस पे फोकस करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर डूइंग ऐसे ही बैठे मजाक मजाक में ऐसे तुक्का मारे इट इज प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन देयर प्रॉपर रिसर्च मेथड्स आर यूज्ड राइट। अब हम क्या क्या पढ़ रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम थॉट्स पढ़ रहे हैं इंसान क्या सोच रहा है हम फीलिंग्स पढ़ रहे हैं फीलिंग स्टडी कर रहे हैं दैट व्हाट अ पर्सन इज फीलिंग what are the emotions that a person is experiencing and then we are also talking about the behavior कि आगे फील करने के बाद उस वो थॉट प्रोसेस के बाद व्हाट इज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। अब ये सारे थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द एक्चुअल imagined or implied presence of other. Now it is very important to understand these three terms, right? These three words. Actual presence is जब एक्चुअल में एक इंसान है इमेजिन प्रेजेंसेस की कोई है नहीं बट हमें हमें लग रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं एक्चुअल में हमें कोई नहीं देख रहा है इम्प्लाइड है जब हमको बोला गया है कि हम देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं बट एक्चुअल में नहीं देख रहे हैं। तो इन सब सिनेरियोज में कैसे इन ये सब सिनेरियोज कैसे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके थॉट्स उसके इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं चेंज नहीं करते हैं ये सबको पढ़ना
इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना, दैट इज व्हाट वी कॉल सोशल साइकोलॉजी. ठीक है. इट दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय Alport and this is one of the good definitions that we all use and you have to use it when you're writing your exam. ओके. सो इसमें सोशल साइकोलॉजी में जैसे हम नॉर्मल किसी भी साइकोलॉजी की सब्जेक्ट की बात करें, वी कंस्ट्रक्ट थ्योरीज, वी कंस्ट्रक्ट, हम एक प्रिडिक्शंस करते हैं, हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं which are then tested using experimental methods. We all know psychology में हम research is the baseline where we do all the experiments. Non experimental हम research भी करते हैं and then हम उसको justify करते हैं कि हमारा hypothesis सही था कि नहीं था. So the research involves, of course, data collection, which is determine whether the theory gives the best possible explanation of the research findings, right? अभी तक सबको समझ आ रहा है? Is there anything that you guys want me to change? My way of teaching or anything? No, ma'am. Sure, सबको समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है, किस बारे में बात हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, Yes, all right. ma'am. कुछ भी किसी को कुछ पूछना हो, you guys can raise your hands and unmute yourself. All right, and you can ask the question. Okay, so social psychology, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट अपने आप को बोलते हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, they have come to recognize that although the study of an individual's thought या feelings की बात, yes, Ravi sir, you want to say something? I hope I'm saying your name correctly. Yes, you've raised your hands. You want to say something, बच्चा? It's Rabizul. Yeah. Yes, sorry. हाँ जी, पूछो. Right. You're audible. You want to ask something? I have a I'm sorry, I'm not able to hear you. कोई और सुन सकता है कि क्या बोल रहे हैं? Is anyone able to hear what Rabizul is trying to Hello, ask? could you hear me? Yeah, yes. Go on. But you're on I have a mute. question about interplay of theory and research. Can you say again? You have a question about what? I have a question about interplay of theory and research. I can hear interplay. Yeah, I know Wi-Fi issue. You can type your question, bacha. I will answer it. Okay. Anyone else who wants to ask a question, or we can wait for Asking the. about interplay of theory and research. Wait, I'm texting. You should text bacha because मैं नहीं समझ पा रही हूँ. Okay. So also with time, we have to understand that social psychologists have started accepting that culture plays a very important role. ऐसा नहीं है कि जो यूएस में लोग बिहेव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, सिमिलर इंडियंस बिहेव करें या सिमिलर एशियंस, कोई भी एशियन, चाहे चाइनीज हो, जापानीज हो, कोई भी तरीके के बिहेव करे. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि a person who is from US behaves differently in a crowd as compared to a person who is European, as compared to a person who is Indian, right? So slowly and slowly from the last 10-15 years, social psychologists have started accepting that culture plays a very important role in understanding the behavior of individuals in the presence of others. All right.
we'll be talking about the origins of social psychology कि social psychology actually start कैसे हुआ, right? तो social psychology का term कब हुआ जब there were two publications जिसमें नाम यूज किया गया था social psychology का, और जैसे ही उन्होंने वो टाइटल दिया, this whole concept of social psychology started. So the first one was given by William McDougall, जिन्होंने 1908 में एक अपना पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बोला कि सोशल बिहेवियर जो है इट इज डिटरमाइंड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ इनेट टेंडेंसीज और इंस्टिंक्ट्स बोलो हम कि हमारे गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट्स की जो बात करते हैं वो उन्होंने बोला, विच इज ऑफ कोर्स नाउ नॉट सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट. द सेकंड अप्रोच व्हिच वाज रिटन बाय फ्लॉयड एल्पोर्ट, जिन्होंने 1924 में सोशल साइकोलॉजी लिखा, उनका जो सोशल साइकोलॉजी है वो हम उनका जो डेफिनेशन है या उनका जो कॉन्सेप्ट है सोशल साइकोलॉजी का वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है आज के टाइम पे. उन्होंने ये बोला कि सोशल बिहेवियर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम and it is influenced by a range of factors including the presence and behavior of others, right? So if we simply say, हम एल्पोर्ट ने ये बोला कि जो सोशल बिहेवियर है हम बाहर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस ये सिर्फ हम पे ही नहीं डिपेंड करता, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर. किसी और का बिहेवियर मेरे सामने कैसे है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिटरमाइन माई बिहेवियर, राइट? So that was how Alcott explained it. तो इवेंचुअली धीरे धीरे सोशल साइकोलॉजी पे और काम होने लगा 1930s के टाइम पे, बट मोस्ट ऑफ द वर्क स्टिल नाउ आल्सो हैज बीन डन इन यूएसए ओनली. और यूएसए में क्यों हुआ? ऑफ कोर्स उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उनका हायर एजुकेशन में रिसर्च हमेशा ज्यादा रहा है. तो मोस्ट ऑफ द थ्योरीज वी हैव राइट नाउ टुडे मेजरली वो सारी सेंट्रल जो है वो यूएसए में ही ओरिजिनेट करती है. मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी. अब इस फील्ड में सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में कैसे कैसे शेप लिया, दिस आल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो हम जब इस फील्ड की बात करते हैं ना, हम दो तरीके की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी. अब दोनों में फर्क क्या है? जो साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी है ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस ऑफ इंडिविजुअल्स पे फोकस करती है, ठीक है? इसका प्राइमरी जो अप्रोच है, जो एम्फसिस है, व्हाट इज इट? इट इज द इंडिविजुअल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस. जो मेन फोकस होता है साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी का, इट फोकसेस ऑन द cognitive structures and processes of individuals and not the social systems, right? जो हम ज्यादातर यूएस और ब्रिटिश ट्रेडिशन में हम ये साइकोलॉजिकल रिसर्च देखते हैं, राइट? जो सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी है इट emphasizes द डिटरमिनेट फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम्स. इसका जो मेन फोकस रहता है वो सोशल सिस्टम्स कैसे फंक्शन करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन या ग्रुप कैसे फंक्शन करता है, इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं साइड पे रख देते हैं. So the growing concern following the Second World War was कि social psychology जो यूरोप में थी specifically was too reliant on the US tradition, which somehow I think is now also कि साइकोलॉजी में बहुत सारी हमारी थ्योरीज जो है वो यूएस और यूके जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से आई है, और हम बहुत ज्यादा अपनी साइकोलॉजी को वहां से हमारा रहता है कि जो वो बोल रहे हैं हमें लगता है वो सही है. बट इवेंचुअली क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जैसे ताजफल है, उन्होंने क्या कंसिडर किया कि सोशल साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो रही है, कि हम एक इंसान के बारे में बात करे जा रहे हैं बार बार, उसका बिहेवियर क्या है और उसका हम रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम सोशल कॉन्टेक्स्ट, हम कल्चर को छोड़ रहे हैं, उसके आसपास क्या चल रहा है हम वो छोड़ रहे हैं. उस कंट्री में वॉर चल रही है, उस कंट्री में गरीबी चल रही है, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ये सब हम देख ही नहीं रहे हैं, हम उसका ओवरऑल सोशल कॉन्टेक्स्ट देख ही नहीं रहे हैं, हम उसके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, थॉट और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के पीछे पड़े हुए हैं. तो इवेंचुअली धीरे धीरे बेटर हुआ. अभी तक सबको समझ आ रहा है? इज देयर एनीथिंग I can
explain no, again clear. or anything you want me to clarify? No. Are you sure, guys? Yes, Diya. मैम Yes, ma'am. सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी को एक बार रिपीट. ओके. सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी क्या बोलता है? जैसे दो मैंने बताया ना, दो दो हो गए, एक साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजिकल. राइट. साइकोलॉजिकल समझ आया कि हम जो फोकस रख रहे हैं वो इंडिविजुअल पे रख रहे हैं. राइट. हम इंडिविजुअल को बीच में रख के उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, उसके थॉट प्रोसेस, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं. समझ आया ये? यस मैम. हाँ. पर जब हम सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी का उसमें हम ज्यादा एलिमेंट रख रहे हैं. सोशियोलॉजी का हम बोलते हैं कि हम बीच में हम जो फोकस रख रहे हैं वो हम सोशल सिस्टम्स पे रख रहे हैं कि कैसे एक सोसाइटी फंक्शन कर रही है, कैसे एक इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रहा है. अगर हम एक सोसाइटी में बोलूं कि इंडिया है, हम इंडिया को एज अ सोसाइटी देख रहे हैं, ना कि हम एक इंडियन इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि इंडियन कल्चर कैसे काम कर रहा है या इंडियन सोसाइटी एज अ होल कैसे फंक्शन कर रही है. उसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं छोटे छोटे, अगर हम रिलीजन की बात करें, हम कास्ट की बात करें, तो वो एक पर्टिकुलर कास्ट कैसे फंक्शन करती है, हम उस पर फोकस करते हैं. और इंडिविजुअल को हम कहीं ना कहीं साइड पे छोड़ देते हैं. हमारा मेन फोकस रहता है एक सोसाइटी पे, एक सोसाइटी सिस्टम पे. Was I able to explain you? यस मैम. Okay. Anyone else? अच्छा, you were talking about interplay of theory and research. We'll be talking about it. अभी ये टॉपिक नहीं आया है. इसके बारे में आगे बात करेंगे. Okay. Anyone else? No, ma'am. Okay. So I'll carry on with my topic. Ma'am, Yes. हाँ जी, पूछो. Ma'am, I have a question. जो हमें कॉलेज से स्टडी मटेरियल मिला है जो सोशल साइकोलॉजी की, उसमें चैप्टर अलग है और जो आप पढ़ा रहे हो वो अलग है. बच्चा ये बीए प्रोग्राम की क्लास है ना? यस मैम. हाँ. तो बीए प्रोग्राम में एक माइनर पेपर आपको मिला, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी. यस मैम. हाँ. तो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में ही जो आपका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन में, वो करा रही हूँ आपको. तो मैम ये बीए प्रोग्राम ऑनर्स में नहीं है? नहीं. ये प्रोग्राम ऑनर्स में नहीं है मतलब? साइकोलॉजी ऑनर्स में नहीं है माइनर वाला? नहीं बच्चा, ये आप नहीं, ये मुझे लगता है आपने ना गलत वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया है. आई थिंक यू कैन आस्क योर फ्रेंड और समवन, वो आपको हेल्प करेंगे. बीए प्रोग्राम विद ये आपको ना अलग मटेरियल है बच्चा. एक सोशल साइकोलॉजी जो है आपने, मुझे लगता है वो कर लिया, दैट इज फॉर बीए ऑनर्स के बच्चे हैं. तो ये अलग है. मैम बीए प्रोग्राम. इंट्रोडक्शन टू सोशल May I say something? बीए प्रोग्राम का. हाँ, बोलो बच्चा. Okay. मैं ये कह रहा हूँ शायद ये ऑनर्स से है, इसने गलती से ज्वाइन कर लिया है. It is a possibility. Diya, you'll have to. Are you from BA program or BA honors, beta? बीए मैम प्रोग्राम के ऑनर्स. साइकोलॉजी ऑनर्स मैम साइकोलॉजी ग्रुप में ये ऑनर्स. वाला तो यही ज्वाइन कर लिया. साइकोलॉजी ऑनर्स. But sir, this is the class for BA program with psychology. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. No worries, beta. Okay, we'll move on. अच्छा ठीक है. अब हुआ क्या कि इतनी पढ़ाई हुई सोशल साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी बहुत हम 30-40 साल तक उस पर रिसर्च हुआ. तो देन व्हाट हैपेंड इन द लेट 1960s and 1970s, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग सोशल साइकोलॉजी कि ये सब्जेक्ट का कितना रोल है, कितना यूजफुल है ये सब्जेक्ट. जो हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं वो एक्चुअल रिसर्च हो भी रही है कि नहीं हो रही. सो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस.
राइट. तो मेच्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन वाज क्वेश्चन और सेवरल इश्यूज में पूछा गया कि जो सोशल साइकोलॉजी हम इतना रिसर्च कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, should it be considered a scientific investigation and whatnot. So one issue was कि whether the social psychological research then conducted was ethical. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला गया था कि जो सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च हो रही है वो एथिकल हो रही है कि नहीं है, बिकॉज डिसेप्शन बहुत यूज हो रहा था. डिसेप्शन मतलब कि लोगों को डिसीव करना, लोगों को कुछ और बोल के कुछ और उनके साथ करना. बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं सोशल साइकोलॉजी में जिसके आगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे लोगों को प्रिजन में बंद कर देना, शॉक देना. ऑफकोर्स उनको एक्चुअल शॉक भी दिया गया था, पर बाहर के लोगों को बोला गया था कि उनको शॉक मिल रहा है और उनको चिल्लाने की एक्टिंग करने को बोला गया था. तो बहुत सारा ये डिबेट हुआ था कि आप जो ये सब चीजें कर रहे हैं ये एथिकल है भी कि नहीं, ये सही भी है कि नहीं. आप अपने रिसर्च के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर सकते ना. यू कांट प्ले द पीपल्स माइंड एंड यू कांट गिव देम स्ट्रेस एंड ट्रॉमा. So there was another issue which was what is the extent to which laboratory research, जो laboratory research हम कर रहे हैं वो actual जो reality में है उसमें it can be applied. तो ये बहुत सारी चीजें थी कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल फोकस है और हम सोशल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं. बहुत सारी चीजें क्वेश्चन किया गया, बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया गया. सो देन व्हाट हैपेंड इज, ऑफ कोर्स इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद कुछ बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए, कुछ रैडिकल इंप्रूवमेंट्स आए, कुछ ऑल्टरनेटिव्स आए. ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से कुछ मॉडर्न साइकोलॉजी बना, सोशल साइकोलॉजी बना और कुछ कुछ चेंजेस आए. अब वो चेंजेस जो थे वो 3 चेंजेस थे: सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल सोशल साइकोलॉजी. So when we talk about social constructionism क्या बोलता है कि हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं. जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत भी हो सकता है, जो आपके लिए सच है वो मेरे लिए गलत भी हो सकता है या मेरे लिए झूठ भी हो सकता है. राइट. जो हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये मैं फैक्ट बता रही हूँ कि आज सारे बच्चों को क्लास में समझ आ रहा है क्योंकि सब हाँ हाँ बोल रहे हैं, कोई ये नहीं बोल रहा कि समझ नहीं आ रहा. ये मेरे अकॉर्डिंग फैक्ट है. बट it of course can be wrong also, right? Because मेरे लिए जो फैक्ट्स हैं वो किसी और के लिए झूठ हो सकता है, एंड इट अप्लाइज विद फॉर एवरीवन, राइट. तो इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हम पहली बात कर रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लैंग्वेज कम्युनिटीज इन विच दे आर जनरेटेड. और कोई भी जो डिस्क्रिप्शन है नेचर का, रियलिटी का, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लोकेशंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन. हमारे अकॉर्डिंग क्या फैक्ट है वो हमारे कल्चर पे, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल लोकेशंस के डिस्क्रिप्शन पे, उन पे बहुत मायने रखता है. राइट. कोई कहेगा कि डेड बॉडी को जला देना चाहिए, कोई कहेगा कि डेड बॉडी को बरी कर देना चाहिए, कोई कहेगा कोई और तरीका होना चाहिए. सो ये क्या है, ये हमारे सबके अपने अपने कल्चरल वैल्यूज हैं, कल्चरल बिलीफ सिस्टम्स हैं व्हिच वी ऑल आर फॉलोइंग. और सब ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए गलत है दूसरे के लिए वो सही नहीं हो सकती है. राइट. दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कैन आल्सो भी कैसे हम एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. राइट. सेकेंड वन जो एक बहुत मेजर चेंज है, पहला तो था सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, जो दूसरा चेंज आया वो था डिस्कोर्स एनालिसिस. अब डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ टेक्स्ट. जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है. राइट. टेक्स्ट कैन बी जो पुराने हमारे वेद हैं या कोई हमारी पुरानी कहानियां है, सिंपल है कोई पंचतंत्र की कहानी है, कोई भी जो पुराने हमारे टेक्स्ट हैं किसी भी चीज के, उनको पढ़ना और उनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना. राइट. दिस इज व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस. तो डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स विद इन द लैंग्वेज इन यूज. अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक लैंग्वेज का ना एक अपना इमोशन होता है और एक अपना उसका मीनिंग होता है. राइट.
हर एक लैंग्वेज को उनके एक अलग पैटर्न्स होते हैं, चाहे वो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी को इंटरप्रेट करने का अलग तरीका है, और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का एक अलग, हर एक लैंग्वेज का देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न इन एवरी लैंग्वेज. So all of these approaches they reject the idea that language is merely a neutral way of describing. ऐसा नहीं है कि language एक neutral चीज है, नहीं. Language in itself has a lot of emotions, has a lot of thoughts and a lot of culture to it. हम किस भी लैंग्वेज में आज बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, हम देखेंगे कि हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज का एक्सेंट चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है. अगर हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो हिंदी का भी जो यूज है, आप ईस्टर्न यूपी देखें, आप वेस्टर्न यूपी देखें, आप बिहार देखें, आप झारखंड देखें, आप दिल्ली की हिंदी देखें, सब में आपको हिंदी के एक्सेंट में और हिंदी के यूज में कितना डिफरेंस आ जाएगा. सबकी हिंदी का एक्सेंट, सबके वर्ड्स कितने अलग अलग तरीके के हैं. तो सबको समझने का तरीका अलग होना चाहिए. दैट इज व्हाट डिस्कोर्स एनालिसिस टॉक्स अबाउट. देन द थर्ड इज क्रिटिकल सोशल साइकोलॉजी. अब क्रिटिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है क्रिटिकल. इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक अजम्पशन को क्वेश्चन करो. हर एक चीज जो हम आज टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो ऐसा ही होता है सोसाइटी में, ये तो ऐसा ही होता है, लोग तो रोते ही हैं डेथ के बाद, या कुछ भी ऐसा होता है कि हम बर्थडे में क्लैपिंग तो करते ही हैं सब, या कोई घर के बड़े से हम ये काम करवाते हैं, हमेशा घर के बड़ा पहला खाना खाता है. हर एक चीज जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो होती ही है, उसको आप क्वेश्चन करो, उसको अजम्पशन मत लो, उसको देखो कि वो कैसे हो रहा है, वो क्या हो रहा है. जो पार्स है, इनइक्वालिटी है, डिफरेंसेस है, आप सबको क्वेश्चन करो और देखो कि कैसे हो रहा है. कुछ घरों में अगर ऐसा ये प्रैक्टिस है कि औरतें खाना बाद में खाती है सारे मेल्स के बाद, तो वो क्यों हो रहा है वहां पे, वो क्या पावर डायनेमिक्स है विच इज लीडिंग टू दिस. और कुछ फैमिलीज जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके खा रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, फीमेल हो या मेल हो या बड़े लोग हो, सबके सब एक साथ खा रहे हैं, तो उनके पावर डायनेमिक्स क्या है. तो ये सब हमें क्रिटिकली सोचना चाहिए, हमारे आसपास क्या हो रहा है, या कोई भी थ्योरीज जो हम दे रहे हैं. सबको समझ आया ये टॉपिक? तभी मैं आगे टॉपिक पे बढ़ूंगी. मैम, Yes, मैम, ma'am, what go is ahead. the हाँ जी. meaning of word discourse? डिस्कोर्स का बच्चा लिटरल मीनिंग तो आई डोंट थिंक मुझे पता है. आई कैन गूगल इट इफ यू वांट. Yes, ma'am. ओके, डिस्कोर्स इज रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, जो लिटरल मीनिंग है कि जो रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, और एनालिसिस वही हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो रिटन टेक्स्ट है या स्पोकन टेक्स्ट है, वही हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. समझ आया बच्चा? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? एक मैम एग्जाम कब होगा ये बता, मेरे को नहीं पता. ओके, so should I move on with the next topic? Are you sure बेटा सबको समझ आ रहा है? Everyone is able to understand? Frame some questions from like after ending one chapter. Can you frame some questions and tell us? Sorry, can you repeat बच्चा, क्या बोला? अगर आप मतलब एक चैप्टर फिनिश होने के बाद अगर आप थोड़े क्वेश्चंस फ्रेम कर कर हमें बता दें, मतलब सैम्पल क्वेश्चंस थोड़े से कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. Okay, इस ऑल राइट. अच्छा, बट उससे पहले आप लोग मुझे बताओ कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जनरली आप 15 मार्क्स ना, फॉर 15 मार्क्स, राइट? Yes, ma'am. Ma'am, 10 and 15. ऑल राइट. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस नहीं होते ना मुझे, क्योंकि एसओएल का क्वेश्चन पेपर का वो पता नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा. 10-15 मार्कर्स होते हैं ना, राइट? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. तो जब यूनिट खत्म होगा आई विल टेल, वो मैं हर एक यूनिट के बाद बता दूंगी, डोंट वरी. और कुछ किसी को कुछ पूछना है, कुछ कोई फीडबैक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, और एल्स वी मूव ऑन विद अनदर टॉपिक.
Okay, so I think we'll move on. So now we'll be talking about the recent developments. This is another topic, and इसमें हम 3 major themes की बात करते हैं. This has been further divided in 3 major themes. तो जो पहला है, जो 3 major developments हुई, उसमें जो पहली development है, it is increasing emphasis on using our knowledge of cognitive processing to understand the complexities of social phenomena. ठीक है. अब हम जब पहले साइकोलॉजी जब स्टार्ट हुआ था, हम जो कॉग्निशन पढ़ रहे थे, वो हम कॉग्निशन सिर्फ एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का पढ़ रहे थे. हमें नहीं फर्क पड़ रहा था कि वो एक इंसान, हमने नहीं सोचा था इस बारे में कि वो एक इंसान मे बी उसका जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है वो घर पे अलग तरीके से बिहेव करेगा, काम करेगा, फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करेगा, रूम में अकेले होगा तो वो अलग कॉग्निशन चलेगा. हमने ये नहीं सोचा था, बट इवेंचुअली वी थॉट अबाउट दिस कि कॉग्निटिव जो फिनोमिनन है, जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों की प्रेजेंस में. तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ कि इन्वायरमेंट जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड एज प्रोवाइडिंग इनपुट डेटा. कि इन्वायरमेंट जो है हमको इनपुट डेटा देता है विच इज देन प्रोसेस्ड. उसको प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड इन आवर मेमोरी एंड देन इट इज अप्लाइड. तो ये जो मेंटल प्रोसेसेस है जो हमें इनेबल करते हैं टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, दे आर नोन एज कॉग्निशन. अब हम सोशल कॉग्निशन की बात करें तो सोशल कॉग्निशन क्या है? इट फोकसेस मोर ऑन स्पेसिफिकली ऑन हाउ पीपल सिलेक्ट, interpret, remember and use information to make judgments about themselves and their social environment. हमें आसपास के जब प्रेजेंस है, जैसे मैंने बोला ना, एक्चुअल इम्प्लाइड प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस, जब आसपास लोग हैं तब मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, तब मेरा इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे काम कर रहा है. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ग्रुप में ज्यादा अच्छे से हम पढ़ पाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम अकेले ज्यादा पढ़ पाते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज सोशल कॉग्निशन, राइट. हमारा कंसंट्रेशन कैसे काम कर रहा है, हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, दिस ऑल कम्स इन सोशल कॉग्निशन. नाउ द सेकंड थीम जो हुआ है, जो सेकंड हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट हैज बीन द रिकॉग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर and its impact on social and psychological phenomena. Now, this is one of the most important and crucial development, जो आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा ड्यू था. वो ये था कि इनिशियली जब सोशल साइकोलॉजी या कोई भी साइकोलॉजी में, जितने हम सोशल साइकोलॉजी में बात कर रहे थे, सारी थ्योरीज जो है वो यूएस में ही, क्योंकि ऑफकोर्स सारा रिसर्च वहां से स्टार्ट हुआ, साइकोलॉजी इनिशिएटेड फ्रॉम देयर एज अ सब्जेक्ट. तो सारा जो रिसर्च था वो हम ये मान के चल रहे थे कि जो यूएस के इंसान महसूस कर रहा है वही इंडिया का इंसान महसूस कर रहा होगा, वही नेपाल का इंसान कर रहा होगा, वही चाइना का इंसान एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वैसा ही सोच रहा होगा, वैसा ही वो बिहेव कर रहा होगा. हम यही सोच रहे थे कि फर्क नहीं होता कल्चर में, कल्चर कोई मैटर नहीं करता. हर एक इंसान जो है पूरी दुनिया में सब एक ही तरीके से सोचते हैं, सब एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, सब एक ही तरीके से इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को. बट जैसे जैसे स्टडीज हुई, we have found that there is a very significant difference in how different type of people think in a same situation, in a similar situation. So culture plays a very important role. Indian culture हो, वेस्टर्न कल्चर हो, अगर हम एशिया में भी बात करें तो ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि सारे एशियन जो है वो सिमिलर होंगे. ऑफकोर्स अभी हमें लग रहा है कि इट इज ऑफकोर्स, बट पहले सबको लग रहा था कि अगर हम एशियन की भी बात कर रहे हैं तो चाइना, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, जापान, जितने भी कंट्रीज हैं एशिया में आती हैं, दे मस्ट बी बिहेविंग इन अ सिमिलर वे, they must be interpreting things, they must be processing things. So that has changed with time. ठीक है. इन कल्चर को इम्पोर्टेंस देना, बिकॉज कल्चर डिफाइन करता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, राइट. हम कैसे अपने आप को, हमारा सेल्फ का नोशन क्या है, हम अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा मीनिंग क्या है लाइफ का. तो ये सब चीजें, कल्चर, बहुत ट्रेडिशंस क्या है हमारा हिस्ट्री क्या है. इंडिया कम्स विद लॉट ऑफ हिस्ट्री, एवरी कंट्री कम्स विद लॉट ऑफ हिस्ट्री, राइट. इवन इंडिया में भी अगर हम उसको और डिवाइड कर दें तो हम इंडिया को अगर हम डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड करें तो हर एक जगह की एक अपनी हिस्ट्री, एक अपने ट्रेडिशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि
जो वहां का इंसान है, जो इंसान वहां से बिलोंग करता है, वो कैसे सोचता होगा। करेक्ट। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट। द थर्ड डेवलपमेंट इट वाज कि there was an increasing interest among social psychologists in analyzing current social problems and applying their knowledge to practical issues. अब ये it was a good thing, right? हम there's always a debate कि साइकोलॉजी का एक्चुअल अप्लाइड कितना हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज कितना है. So that was where one of the developments took place, where social psychologists they started applying different theories, different understanding, different perspectives, different approaches to actual real problems. वो real problems हम सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी हम कर सकते हैं, या ऑफिस में कैसे ग्रुप फॉर्म होता है, ऑफिस में कैसे लीडरशिप मैनेज होती है, बहुत सारी चीजें है ना. सोशल साइकोलॉजी तो हमारी हर जगह है. अभी हम इस मीटिंग में बैठे हैं, यहाँ भी बहुत सारे सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारा सोशल साइकोलॉजी एट प्ले है, राइट. हम कहीं भी दो या दो से ज्यादा लोग जब भी कहीं पे एंगेज करते हैं तो वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी इट टेक्स प्लेस. तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट वाज वन ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस. ये टॉपिक समझ आया? 3 डेवलपमेंट्स जो मैंने बात की, रिसेंट डेवलपमेंट्स की. हर एक टॉपिक के बाद आई एम आस्किंग यू गाइस, ताकि अगर कुछ इशू है तो वी कैन मैम सॉल्व देयर ओनली. हाँ जी. मैम इसका जो सेकंड पार्ट था उसको थोड़ा सा और बता सकते हैं? कल्चर की बात की जो हमने. यस मैम. ओके. मैंने वैसे बहुत डिटेल में बताया. अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बताओगे कि आपने क्या समझा. मैम मतलब हमारा जो कल्चर है, कल्चर के अकॉर्डिंग भी सबके थॉट्स वगैरह और जो हम सबके अलग अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं. कल्चर एक तरह से मतलब राइट राइट राइट. वेरी गुड. थोड़ा समझ आया आपको. ओके गॉट इट. अच्छा, ये अग्री करते. अच्छा हैरी, यू वांट टू आस्क समथिंग? डू यू वांट टू like comment on the question, or you want to ask another question? Because if you want to ask another question, you have to wait. Ma'am, I'm sorry, there was a mistake. Okay, no worries. All right. So जैसे दिव्या, अच्छा ये do you agree with कि US का जो कल्चर है वो इंडिया के कल्चर से डिफरेंट होगा? यस मैम. राइट. इवन अगर हम इंडिया को भी और बाइफर्केट करते हैं तो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कल्चर में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. डू यू अग्री विद दिस? यस मैम. हम नॉर्थ इंडिया में भी और चले जाएं तो कश्मीर और दिल्ली में जो कल्चर हैं दोनों अलग अलग होंगे. यस मैम. राइट, करेक्ट. तो जब इतना कल्चरल डिफरेंसेस है तो पहले ये एक्सपेक्ट किया जाता था, या पहले ये एक अजम्पशन था कि सारे कल्चर के लोग सब एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, हर एक सोशल सेटिंग में, हर एक सिचुएशन में एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से उनका कॉग्निशन काम करता है, एक ही तरीके से वो बिहेव करते हैं. बट जैसे जैसे सोशल साइकोलॉजी में ये डेवलपमेंट आया और लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं है. कल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक इंसान कैसे बिहेव करेगा और कैसा अपने आप को फील करेगा, कैसा एक्सपीरियंस करेगा. राइट. तो दिस वाज वन ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जो यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ मेलास दैट हैपन. कुंभ का मेला, जो सबको कुंभ के मेले के बारे में पता है? यस मैम. ओके. सो कुंभ का मेला जो लगता है वो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा. मतलब इतनी भीड़ होती है कि मतलब देयर आर पीपल इन लैक्स एंड समटाइम्स मिलियंस की काउंटिंग में लोग आते हैं. राइट. वहां पे रहते हैं, वहीं पे ही नहाते हैं, वहीं पे ही सोते हैं. अब कोई इंडियन जाएगा जो उस जगह पे बिलीव करता है, तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इंडियंस जब वहां पे माघ मेला में जाते हैं तो उनका वेलबींग जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो अच्छा फील करने लगते हैं.
उनमें एक एनर्जी आ जाती है, उनमें देयर इज सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट दे फील। और ये हमने साइंटिफिक ऐसा रिसर्च हुई है कि ये सब पाया गया है कि अगर कोई इंडियन जाता है जो वहाँ पे प्रॉपर पूजा पाठ करने जाता है, जो वहाँ पे नहाने प्रॉपर अपना व्रत वगैरह रख के सब जाते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन ओवरऑल वेलबींग। उनको अच्छा महसूस होता है, उनको हैप्पीनेस महसूस होती है, उनको एनर्जेटिक महसूस होता है, वो एक अलग एंथुजियाज्म उनको एक महसूस होता है। बट देयर हैज बीन सिमिलर रिसर्च where people which came from US और UK जो यहाँ माघ मेला में आए थे, उनको वो बहुत शोर महसूस हुआ, उनका हेडेक होने लग गया, उनको घबराहट होने लग गई। सेम प्लेस, सेम सिचुएशन बट डिफरेंट पीपल, राइट? यस करेक्ट? मैम। दोनों पॉपुलेशंस को अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, दोनों पॉपुलेशंस को अलग अलग उनकी फीलिंग्स थे, उनके थॉट प्रोसेसेस थे। दैट इज व्हाट दिस सेकंड पॉइंट टॉक्स अबाउट, कि कल्चर को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कल्चर को उसका ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक हम पूरे तरीके से सोशल फिनोमिनन या साइकोलॉजिकल फिनोमिनन को नहीं समझ पाएंगे। Was ओके I मैम, able to थैंक explain यू। to you? यस मैम। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन? Okay, then we'll move on. Okay, so today अभी हम ये interplay of theory and research करेंगे, then बाकी we can do tomorrow. We have a class 8 से 9, तो हम वो सब कर लेंगे। So of course, अब now we talk about कि how do social psychologists they choose what to study? वो कैसे choose करते हैं कि हमें ये चीज पढ़ना चाहिए, इस चीज के बारे में पढ़ना चाहिए और इस चीज के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए? कैसे वो सोशल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं कि हम ये चीज सोचने वाली है, ये चीज हम सोच सकते हैं, ठीक है? बट इवेंचुअली वी रियलाइज इज कि जैसे जैसे एक रिसर्च होती है ना, इट गिव्स क्वेश्चंस टू मोर रिसर्च क्वेश्चंस। हमें एक चीज के बारे में पता चलता है तो हमारे पास और 10 सवाल आते हैं, तो अच्छा ये तो फिर और कैसे, इस तरीके से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिसर्च जो है इन सोशल साइकोलॉजी इज थ्योरी। पहले थ्योरी आती है, उसके बाद हम कुछ चीज रिसर्च करते हैं, राइट? अल्टीमेटली गोल क्या है सोशल साइकोलॉजी का? इट गोज बियॉन्ड डिस्क्राइबिंग सोशल बिहेवियर। हमें सिर्फ सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें उसको अच्छे से समझना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसको फिर हमारे पास हमें इतना उसकी समझ होनी चाहिए कि हम इवेंचुअली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी की, एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट? हम उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द इवेंचुअल गोल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना सोशल साइकोलॉजी की, तो हम 3 कैटेगरीज बोलते हैं, ठीक है? 3 कैटेगरीज हम क्या बोलते हैं? पहले आती है बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्योर रिसर्च बोलते हैं, जो बेसिकली बोलते हैं कि कैसे हम जनरल लॉज और जनरल स्टोरीज हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि what issues arise when we try to recall information alone or in the presence of others। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करते हैं तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, अलोन क्या इश्यूज हो सकते हैं, और लोगों की प्रेजेंस में हमें क्या इश्यूज कर सकते हैं। क्या हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा याद तब आती है जब हम अकेले होते हैं या हम लोगों के आसपास होते हैं, और कैसे लोगों के आसपास होते हैं, क्राउड में होते हैं, मार्केट में होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बेसिक रिसर्च के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Then the second category comes applied research, ठीक है? जो क्वेश्चन क्या है, जो हमने बेसिक रिसर्च किया उसको कैसे हम थ्योरी में अप्लाई कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाउ डज अनरिलायबिलिटी ऑफ रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट आई विटनेस टेस्टिमनी इन कोर्ट रूम। कि अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन याद कर रहे हैं तो वो कितना रिलायबल है, कि हम उसकी, जो हम बोलते हैं ना कि हम आई विटनेस की बात करते हैं, कि जब हम कोर्ट में किसी इंसान को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या क्या हुआ था, तो कितना रिलायबल इंफॉर्मेशन है, कितना सच है वो इतने सारे लोगों के बीच में बिना नर्वस हुए सारी सही सही डिटेल्स, इवन वो खुद से बताना चाहता है वो इंसान, बट कितना हम एक्चुअली उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं कि उस इंसान ने
जो देखा है वो कोर्ट में आके सही टेस्टिमनी देगा जब हम आई विटनेस की बात करते हैं। और हम ये भी देखते हैं ना कि कोर्ट में जो केसेस हैं वो 10-10 15-15 साल चलते हैं। तो कोई मर्डर हुआ था 10 साल पहले, 10 साल के बाद कोई इंसान आ रहा है ये बताने के लिए कि 10 साल पहले उसने क्या देखा था, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कितना रिलाई कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन पे हम कितना सोच सकते हैं कि वो सच बता रहा होगा इंसान। तो ये सारे क्वेश्चन हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है सोशल पॉलिसी रिसर्च, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम पॉलिसी चॉइसेस को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जो अलग अलग इंस्टीट्यूट पॉलिसी बना रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, कैसे हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं। कि बेसिकली अगर हम ये अप्लाइड रिसर्च का लेके आई विटनेस की जो है वो कितना रिलायबल है, तो सोशल पॉलिसी रिसर्च का करेगा कि कैसे हम क्वेश्चनिंग को चेंज कर सकते हैं क्राइम सस्पेक्ट की, विक्टिम्स की या विटनेस की, कि उनका इंफॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा रिलायबल बन जाए, जो वो बता रहे हैं वो सच बताएं और उसमें वो कुछ मैनिपुलेट ना करे, कुछ चेंजेस ना करे अपने आप से, या कोई चीज छोड़ ना दे, कोई चीज गलती से छूट ना जाए। तो किस स्टाइल की हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो वो हमारा सोशल पॉलिसी रिसर्च में आता है। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है, वोंट बी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक अनदर टाइम, दिस विल बी कवरिंग टुमारो। ये टॉपिक जो था समझ आया थ्योरी एंड रिसर्च का? यस मैम। श्योर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Rabizul, you want to ask something? Shall we get this recording? Shall we have the class? I think so, yes. The class is being recorded. So, of course, there must be a recording that is present and that is available to you guys. मैम कल भी क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी? हाँ जी। ओके। और कुछ किसी को पूछना है? मैम हमारी जो सेकंड बुक है उसके लिए भी क्लासेस होंगी ना? कौन सी सेकंड बुक बच्चा? Flight of social psychology. एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। हाँ हाँ हाँ, यस यस, पढ़ाया जाएगा बच्चा, सब पढ़ाया जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन होगा तभी एप्लीकेशन होगा ना बेटा, तो पहले ये खत्म होगा उसके बाद जो क्लासेस होंगी। और कुछ कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो, कुछ चेंज हम कर सकते हैं पढ़ाने में, एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू डू? अच्छा पढ़ाते हो आप। कुछ ऐसा चेंज जो आपको लगे, बिकॉज ये पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ये तीनों यूनिट्स नहीं कवर कराऊंगी, तो एनी चेंजेस यू वांट कोई भी तरीके से? मैम आप पढ़ाते वक्त पीपीटी शो कर सकते हो, उससे ना नोट्स बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। बच्चा पीपीटी देखो, मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने ऐसे मेरे पास रेडी नहीं है, तो दैट इज अनदर कंप्लीट वर्क फॉर मी पीपीटी बनाना। पीपीटी व्हाट आई कैन डू इज मैं टॉपिक्स की पीपीटी बना सकती हूँ ऊपर ऊपर से, बट ऑफ कोर्स व्हाटएवर आई एम सेइंग आई कैन नॉट इंक्लूड ऑल दैट इन द पीपीटी। No, ma'am, not what you are saying, only from the topic. अच्छा ठीक है, आई कैन ट्राई, ओके आई विल ट्राई, आई विल ट्राई माय बेस्ट। से आप पढ़ा रहे हो, अगर आप नोट्स शेयर कर सको, जैसे आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मिल जाए, आप ये बोल रहे हो? Sort of. ओके ओके, आई कैन ट्राई दिस, ओके आई विल ट्राई कि मैं अगर कल आपको जब पढ़ाऊं तो पीपीटी के साथ पढ़ा सकूं, वील सी टू दैट। ओके ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, या कोई भी और चीज जो आपको समझ नहीं आए, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो? I have a suggestion. यस यस प्लीज। हम ये SLM का फर्स्ट जो कंटेंट पेज है, इससे अगर शेयर करें तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पढ़ना इजी हो जाएगा। एसएलएम क्या बोल रहे हो बेटा? जो स्टडी मटेरियल है? यस यस। ओके, तो उसमें आप कह रहे हो कि पहले से ही वो स्ट्रक्चर दे रखे आप लोगों को?
जी हाँ, उसमें सिलेबस है पूरा पूरा। ओके, वो तो आप लोग बेटा वैसे आप लोग जब क्लास कर रहे हो तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग अपना स्टडी मटेरियल अपने पास रखो, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं भी आप लोगों को वहीं से ही पढ़ा रही हूँ। Yes, you were saying something. बेटा आपकी आवाज कट गई। I'm saying that वो शो तो और बेटर है हमारे लिए। ओके, वी कैन डू दैट। आप शेयरिंग की यही बोल रहे हो ना? एक सेकेंड, आई विल आप ये वाला बोल रहे हो ना? Can everyone can see my screen, right? Yes, ma'am. Yes, हाँ, yes, तो ये yes. स्ट्रक्चर I'm की saying बात about कर रहे that. हैं। हाँ जी, Yes, ma'am. ओके। Yes, I'm saying दैट about ऑफ that. कोर्स आई कैन, हाँ, दिस ऑफ कोर्स आई कैन शेयर। तो अभी तक हमने इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च की बात करी है। नेक्स्ट टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिंकेज विद अदर डिसिप्लिन्स एंड रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी। ऑलराइट? Okay, ma'am. All right. 1.5 and 1.6. Thank you. यस, उसके बाद हम ऑफ कोर्स वो टॉपिक यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। ओके, Thank you. All Have a right. good night. हाँ, टेक केयर बच्चा, बाय बाय। कल यूनिट 2 शुरू करेंगे मैम, बोल तो दे पागल।